We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend Falver, I start my today's lecture with beautiful quote. The quote is, your single word, your single sentence or your single word can make someone happy or sad. So try to utter your words very carefully. You are responsible for that. Whenever you utter something, you must see that these words are going to impact somebody's life. So utter your words because these are in your control. According to Stoicism philosophy, whatever is in your control, you should be worried about. But the things they are out of control, we should not think about that. We should not worry about that one. So if you've got something in your control, you should try to take control over it. You should try to exercise over it. But there are certain things they are not in my control. At least whatever in my capability, I should control this one. So whatever in others capability, in other powers, I should not worry about this. So I should be worried about myself. Am I focused? Am I making concentration on my study? My heart, body, mind and soul, my emotion, passion, feelings, these are in my controls. If it is in your control, you are successful person. Create a balanced life. If your life is not balanced, sometime you thinking about future, sometime you thinking about past, you are not having awareness and consciousness how to remain in present. So present moment, it gives you happiness. Once you learn how to remain in present through meditations, through contemplations, or through your practice, you will able to enjoy your life. So let's start our today's session. So in today's session, I will start my lecture from Shakespeare's work, Timons of Ethan. So Timons of Ethan's by William Shakespeare. This work is written with the collaborations of Thomas Middleton's. Thomas Middleton's and William Shakespeare, with their collaborations, they have, done this work. They have written this work, and it was published around about 1623. As this work was published after the death of the Shakespeare. How I come to know that it is published after the death of the Shakespeare, because we already know Shakespeare was died on 1616. So this work is being published after his death. He was died around about 1616, and it is being published after his death on 1623. So this work is also known as posthumous published work. Posthumous mean when somebody is died and his work is published, it is called posthumous published work. So William Shakespeare, he write this play. In this play, he is going to show how people, they deceive other. There is a theme of deception. There is a theme of trust. There is a theme of wealth. There is a theme of greediness. There is a theme of deceptions. So these themes are in Timons of Ethan. Timons of Ethan is a story of wealthy persons. This Timon, he was very wealthy person, but he was a spendthrift. Spendthrift mean a person who is spending extra money. So whatever he is having, he is spending on other people. He trusts on other people. People come to him, whatever they tell him, worry, resentment, their depression, anxiety, they tell him, he just console them. He give them money. He even give money, whatever he has, he tries to help them. Sometime he helping people while they are getting married. Sometime he giving, donating money. Sometime he is giving to his friends. Sometime he's given to the flatterers. Even his one of his servant stewards, which is known as his personal servant, he said that you should not trust on other people.
You should not spend too much money. We are just running short of money, and we need to have more money. Our creditors, they are increasing, and we are getting shortage of money. Why are you spending so much money on other people? But he trusts on other people. He give them money, he's spending, he donating, and he even helping various way. At last, they deceived him. वो सारे, उसके बाद जब ये सारी दौलत अपनी लुटा देता है, तो इसको कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता. इसमें दिखाया गया है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो, तो अगले इंसान को चाहिए कि वो थैंकफुल हो और उसकी भी हेल्प करे जब उसको जरूरत हो. मिसाल के तौर पर आप मुझसे सारी मेरी एनर्जी, पोटेंशियल्स, पैसा जो भी है वो सब ले जाएं. जब मुझे आपकी जरूरत हो, मैं कहूं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो आप फौरन कहें मैं तो आपको जानता ही नहीं. तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यू फाइंड इन थीमन्स ऑफ एथेंस. इसके अंदर एक आदमी है, उसका नाम है थीमन्स. वो ईथन का रहने वाला है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और उसके फ्लैक्टरर, उसके फ्रेंड उसके पास आते हैं, और जो भी उसके पास पैसा है वो उनके ऊपर सर्व करता जाता है. कुछ अपने मुलाजमीन की, सर्वेंट्स की शादी करवाता है, लोगों के ऊपर पैसे जमा कर रहा है, अपने सर्वेंट को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर रहा है, उनके ऊपर पैसे जमा कर रहा है. और उसका जो एक फ्लेवियस, उसका एक सर्वेंट होता है, वो उससे कहता है कि मालिक, आप इतना पैसा लोगों को दे रहे हैं, ये लोग तो आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये आपके पास तो पैसे कम होते जा रहे हैं, हमारी जमीनें कम होती जा रही हैं, आप सारा पैसा लोगों को देते जा रहे हैं. तो वो कहता है कि अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है. वो कहता है हमारे क्रेडिटर बहुत बढ़ गए हैं, यानी जिनको हमने देना है वो तो बहुत ज्यादा हो गए. वो बेशक वक्त फिर सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं और फिर वो इससे पैसे मांगते हैं, भाई मेरे पैसे लाओ. तो उसके बाद ये सबके पास जाता है, इसका कोई भी नहीं बनता. और बिलीव मी, आजकल की दुनिया ऐसी है, जैसे इस प्ले के अंदर दिखाया गया, रियलिटी ऐसे ही है. अगर आप अपने हाथ या पांव काट के किसी को दे दोगे, तो डेफिनेटली nobody is going to help you. You have to work on yourself. Once you prepare yourself, other will with you. और जब इसके पास दोबारा पैसा आ जाता है, तो वो सारे दोस्त फिर इसके पास आ जाते हैं. तो ये दुनिया कितनी कनिंग है, कितनी मुनाफिक है, कि आपको जब आपसे उनको कोई इंटरेस्ट होता है, तो दे आर विद यू. एज they lost interest, they don't have any interest in you. What they do, how do they behave, how do they leave you, how do they just separate from you. इस प्ले के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से लोग, जब आपकी उनको जरूरत नहीं होती, तो आप उनके लिए जीरो है, वो छोड़कर चले जाते हैं. इसके अंदर कुछ कोट्स हैं जो बड़े ब्यूटीफुल हैं, उनको जरा नोट कर लीजिए. पहली बात यह है कि ये इसके अंदर जो सेटिंग दिखाई गई है वो ईथन ग्रीस की है. ईथन के कैरेक्टर्स हैं और ईथन की सेटिंग दिखाई गई है. इसमें एक कोट है, लाइक मैडनेस इज द ग्लोरी ऑफ दिस लाइफ. यानी मैडनेस जो है इस लाइफ की ग्लोरी है. आगे कहता है जी, माई हार्ट इज एवर एट योर सर्विसेज. आप इसके अंदर देखेंगे तो वो लोगों को सर्व करता करता ही अपनी जान दे देता है. मैन मस्ट लर्न नो विद पिटी टू डिस्पोज फॉर द पॉलिसी सिट अबव द कॉन्शियंस. तो इसके अंदर जमीर की बात भी है. डेफिनेटली व्हाट हैपेंस, यू गिव एवरीथिंग टू अदर पर्सन, बट व्हेनेवर यू नीड टू समबॉडी, what other person behaves or what other person shows, this is the reality of the world. World does not see what you are seeing. दुनिया ऐसी नहीं आपको दिखती जैसी वो है आपके सामने. दुनिया आपको ऐसी नजर नहीं आती जैसी वो मौजूद है. यानी जो दुनिया को हम देख रहे हैं, जैसी ये है, हम वैसे नहीं देखते. ये बात रियलिटी है और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है. चूंकि हम अपनी सब्जेक्टिव परसेप्शन के थ्रू दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया आपको वैसी नजर आती है जैसी आपकी नजरें हैं, जैसे आप खुद हो. ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको नजर आ रही है. सामने जो देख रहे हो वैसा कुछ नहीं है. जैसे रियलिटी है वैसे तो हम चीजों को देखते नहीं है. जो इंसिडेंट इस वर्ल्ड के अंदर होता है, अगर तो वो ट्रेजिक हो, तो वो हर बंदे के लिए ट्रेजिक होना चाहिए. एक घर में 10 बंदे मौजूद हैं, तो 10 बंदे उससे डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट डिग्री से उसको परसीव कर रहे होते हैं. किसी के लिए लेस ट्रेजिक है, किसी के लिए एक्सट्रीम ट्रेजिक है, किसी के लिए वो नॉर्मल है, किसी के लिए लाइट है, किसी के लिए एक फन है.
कोई उसे बॉदर ही नहीं करता, कोई बिल्कुल इनडिफरेंट होता है, ला ताल्लुक होता है। सो व्हाट इज दिस? दुनिया वैसी नहीं नजर आती जैसी है, दुनिया वैसी नजर आती है जैसे तुम खुद हो। आपने जैसी ऐनक लगाई है, जैसी आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपको दुनिया वैसी नजर आएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सी वर्ल्ड एंड विद व्हाट ग्लासेस यू आर गोइंग टू वॉच दिस। जैसे आप चीजों को देखोगे वैसी नजर आएगी। अब थिमोन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस दुनिया के सारे लोग जो हैं वो धोखेबाज हैं, कनिंग है, मकार हैं। जब आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो सम टाइम जिसके ऊपर आप जिसके ऊपर एहसान कर रहे होते हैं वो बाज़ औक़ात अपना उसको राइट समझ लेता है, और ये बहुत खतरनाक है। वी मस्ट पे ग्रेटिट्यूड टू पर्सन। अगर आप किसी इंसान के शुक्रगुजार नहीं हो सकते, थैंकफुल नहीं हो सकते, तो आप इतनी बड़ी गॉड की हस्ती के थैंकफुल नहीं हो सकते। You must pay gratitude to your all well-wishers. They have done something good to you, your teachers, your parents, your surrounding. तो अब हमारा कैरेक्टर जो इसका प्रोटैगोनिस्ट है, थिमोन्स ऑफ ईथन, इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस दुनिया के लोग मक्कार होते हैं और जस्ट अपने बेनिफिट के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने एटीट्यूड की वजह से, चूंकि हम खुद नेगेटिव होते हैं, तो हम एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को भी नेगेटिव बना देते हैं। जैसे प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, जब भी प्लस माइनस के साथ टकराता है तो वो उसको माइनस बना देता है। प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, बट वेन एवर प्लस कोलाइड्स विद द माइनस, अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी माइनस। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव ना हो कि भाई मैं तो नेगेटिव हूं, मैंने नेगेटिव ही होना है। इसलिए पॉजिटिव हो जाओ कि मैंने सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। क्योंकि जब आप एक इंसान को इंपैक्ट करते हो, नेगेटिवली रिमार्क्स देते हो या उसको इंपैक्ट करते हो, वो पूरी होल सोसाइटी को इंपैक्ट करता है। ऐसे मल्टीप्लाई होता आगे आगे। यानी आपने एनर्जी मेरी तरफ थ्रो की, मैंने गुस्से में किसी और को थ्रो कर दी, उसने किसी और को थ्रो कर दी, उसने कुछ और को थ्रो कर दी, उसने किसी और, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक सर्कल चलता है। हम जहां भी खड़े होते हैं, हम अपने गिर्द एक ऑरा बिल्ड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बिल्ड करते हो। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो है इस नतीजे पे पहुंचा है कि भाई इस दुनिया के लोग बिल्कुल नेगेटिव हैं, मकार हैं, हिपोक्रिटिकल हैं, और वो अपने मकसद के लिए दूसरे को यूज करते हैं। और अब उसने सोचा है कि वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करेगा और वो एक खुद गर्ज और मिसएंथ्रोपिक लाइफ गुजारेगा, आइसोलेट होके दुनिया से रहेगा। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। ले जी, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास थिमोन्स। थिमोन्स ईथन का रहने वाला है, और जैसे कि उसके नाम के साथ ही लगा हुआ है कि ईथन्स, थिमोन्स ऑफ ईथन्स, नोबल वेल्दी एंड गोज टू लिव इन द वुड। एक नोबल वेल्दी मैन है जिसके बहुत ज्यादा सर्वेंट्स हैं और बहुत सारे दोस्त जो हैं उससे फ्लैटरिंग के लिए उसके पास आते हैं, और वो अपना पैसा उनके ऊपर निछावर करता है और वो उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके कुछ लॉयल फ्रेंड्स जो हैं उसे रोकते भी हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरह अपने पैसे को जाया कर रहे हो, ये लोग तो आपके नहीं बनेंगे। पहला कैरेक्टर लिख लें, थिमोन्स ऑफ ईथन। थिमोन्स इज अ प्रोटैगोनिस्ट एंड ही इज अ honorable wealthy man, and this man is deceived by many flatterers and his friends and servants. They just come to him for their work and he helps them. As he helps them, whenever he is in the need, nobody helps him. And he reached on a conclusion that here people are mostly hypocritical, they are unfaithful, they are dishonest, so I should not do goodness with other. देखिए, जब आप नेगेटिव और अनफेथफुल और अनग्रेटफुल होते हैं तो आप सिर्फ अपना ही एतबार नहीं गवाते, आप अपना एतबार तो ट्रस्ट करता है इंसान, आप अपना तो गवा रहे होते हो, लेकिन वो दूसरे लोगों से भी उसको फिर उसको नेगेटिव बना जाते हो आप। मैं हमेशा ये कहता हूं कि वी शुड क्रिएट पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड।
how we can create positivity with our good character, with our good interactions, socializing with other peoples, with when somebody is giving you one step, you must give him her two step. अगर कोई आपको आपकी हेल्प के लिए एक स्टेप बढ़ता है तो आप उसकी दो स्टेप बढ़े. दिस इज अ साइन ऑफ द गुड कैरेक्टर. टिमोन्स एक वेल्दी ऑनरेबल पर्सन है और वो लोगों की हेल्प करके इतना उकता गया है कि वो एक जंगल में फिर चला जाता है. ये कैरेक्टर है जो प्रोटैगनिस्ट है. दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास अल्सिबाइडेंस. अल्सिबाइडेंस जो है ये एक अथेनियन कैप्टन है और ये अथेनियन मिलिट्री मैन है. ये एक सच्चा फ्रेंड है टिमोन्स का और टिमोन्स के साथ मिलके ये भी लोगों से हेट्रेड करता है. मिसाल के तौर पर मेरे साथ किसी ने बुरा किया और साथ फातिमा जो है इनके साथ भी किसी ने बुरा किया. हम दोनों ने एक अपना बिलीव बना लिया कि हमने आज के बाद इन लोगों के ऊपर कभी एहसान नहीं करना. हमने किसी के साथ गुडनेस नहीं करनी क्योंकि गुडनेस का रिवार्ड जो है वो बहुत बुरा मिलता है. अल्सिबाइडन के साथ भी मिलिट्री मैन था और इसको किसी और ने कत्ल किया और इसके ऊपर वो डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं, बैनिश कर देते हैं. जब इसको बैनिश कर दिया जाता है तो ये भी टिमोन के साथ मिल जाता है और ये दोनों मिलके अब फैसला कर चुके हैं कि हम किसी के ऊपर भी किसी के साथ अच्छाई नहीं करेंगे क्योंकि अच्छाई का रिजल्ट बहुत बुरा मिलता है. दुनिया के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं. एक जो किसी से फायदा लेते हैं, वो उसको दरख्त को फायदा लिया दरख्त से, मैं थोड़ा सा एनोलॉजी से बात करूंगा. एक दरख्त से ट्री से फायदा लिया, उसको पानी दिया, उसकी काट छांट की, उसका ख्याल रख के आगे चला गया. एक बंदा ट्री से उसने फायदा लिया, फायदा लेने के बाद उसने ना तो उसका कोई नुकसान किया ना फायदा किया और वो चला गया और लोगों को ये बताता है जाके, यार वहां पे एक ट्री है, इतना मीठा उसका फल है और मैं उसके नीचे रात सोया भी और मुझे इतना मजा आया, यार वो बहुत अच्छा ट्री है, उसका ख्याल रखना यार, वो अच्छा ट्री है. अब एक बंदा है कि जब वो नीचे किसी से फायदा लेता है तो उसको क्या करता है, उसको पानी देता है, उसकी काट छांट करता है. दूसरा उसके नीचे सोता है, एंजॉय करता है, फल भी खाता है और फिर दूसरों को बताता है कि यार अच्छा था, तुम भी जाके फायदा लो, ले लेना उससे. तीसरे किस्म के जो इंतहाई खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, जिनको मैं ये कहूंगा कि वो अपना राइट समझ लेते हैं कि ये मेरा हक है कि लोग मुझे सर्व करें, लोग मेरे गुलाम हैं एंड आई हैव अ राइट, पीपल शुड सर्व मी. अब यहां पे हमारे कैरेक्टर के साथ ये मामला है कि उससे लोगों ने फायदा लिया और फायदा लेने के साथ उसको बेचारे को काट के चले गए. अब तीसरे किस्म के लोग जो हैं, दे आर एक्सट्रीमली क्रूवल. अब वो फायदा भी लेते हैं, उसका फल भी खाते हैं और साथ उसको काटना शुरू कर देते हैं ताकि कोई और यहां पे ना बैठे और ना ये इस काबिल रहे ये किसी को फ्रूट खिलाए. नॉट टू बी थर्ड काइंड ऑफ पीपल, दे आर वेरी डेंजरस, दे आर इनह्यूमन, दे आर क्रूवल पीपल. सो अल्सिबाइडन जो है ये भी क्या है, एक एथेनियन है. अल्सिबाइडन क्या है, अल्सिबाइडन इज अथेनियन कैप्टन. शेयर टिमोन्स हेट्रेड, मतलब ये दोनों मिल जाते हैं और ये अब इन्होंने कलेक्टिव हेट्रेड जो है अथेनियन जो कल्चर है या अथेनियन लोगों के खिलाफ इन्होंने बना ली है. उसके साथ धोखा हुआ कि किसी ने कत्ल किया और उन्होंने मिलिट्री मैन उसको क्या उसका ट्रायल किया और उस बेचारे को बैनिश कर दिया और टिमोन से लोगों ने सब ने फायदा लिया और उस बेचारे को उन्होंने कुछ नहीं दिया जब उसको जरूरत पड़ी. तो अब ये दोनों एक कलेक्टिव हेट्रेड इनका पैदा हो गया सोसाइटी के खिलाफ, जो रोमन सोसाइटी है, एथेनियन सोसाइटी है, एथेनियन सोसाइटी, सॉरी. उसके बाद फ्लेवियस एक कैरेक्टर है जो कि लॉयल फ्रेंड है हमारे प्रोटैगनिस्ट का. टिमोन्स का एक फ्रेंड है, उसका नाम है फ्लेवियस उसको वार्न करता रहता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और इन लोगों के ऊपर इतने पैसे आप लगा रहे हो, इसका तो कोई फायदा नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू विल बी इन नीड. एंड डेफिनेटली as he expected, same thing happens. Sometime यहाँ पे ना हमारे फीनल ग्लैंड्स होते हैं, फीनल ग्लैंड उसे कहते हैं. यहाँ पे एक थर्ड आई होती है,
यानी एक ये आई है, एक यहाँ पे एक और अंदर इसके माइंड के अंदर एक और आई होती है। मतलब आप आंखें बंद करें तो बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं, सम टाइम फ्यूचर को भी फील कर लेते हैं, कोई चीज़ बुरी हो रही हो तो हमें उसका भी पता चल जाता है। तो वो हमारे अंदर एक, जिसे छठी सिक्स सेंस कहते हैं या थर्ड आई कहते हैं, ये हमारे अंदर होती है। तो कुछ करैक्टर जो हैं वो दूर अंदेश होते हैं, वो चीज़ों को भांप लेते हैं। फ्लेवियस कहता है कि ये लोग जिनके ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, जिनके ऊपर आप, जिनको एनर्जी, अपनी पोटेंशियल्स और जिनकी हेल्प कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनकी शादियां करवा रहे हैं, दे पीपल आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू और वी आर गेटिंग रन शॉर्ट ऑफ मनी। हमारे पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं, तो आप मेरे आका इससे जरा अवॉइड करें। लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे मशवरे देने वाले। और इसके में एक और फ्रेंड है लूसियस। लूसियस भी उसका फ्रेंड है, फ्लेवियस एक फ्रेंड है और लूसियस भी उसका एक फ्रेंड है, बट ही इज नॉट लॉयल। उसके बाद एक और है एपीमेंटस। एपीमेंटस एक फिलासफर है और एपीमेंटस भी उसको वार्न करता है कि व्हाट एवर यू आर डूइंग, ये जो तुमने स्पेंड थ्रिफ्ट और ये जो आप एक्सेसिव स्पेंड थ्रिफ्ट हो और ऑल द टाइम यू आर स्पेंडिंग एक्सेसिव मनी एंड जस्ट स्पेंडिंग एवरीथिंग, दैट विल बी वेरी डेंजरस बिकॉज ही इज अ फिलासफर। और वो फिलासफर है और वो भी उसे वार्न करता है कि ये चीजें ठीक नहीं है। उसमें एक और है वेंटिडस। वेंटिडस जो है टिमोन्स फॉल्स फ्रेंड है, ये इससे फायदा लेता है लेकिन ये इसके काम नहीं आता। इसके अलावा इसके 3 जो सर्वेंट हैं उनके नाम लिख लीजिए। फ्लेमिनस, फ्लेमिनस नाम लिखें, आपके सामने लिखे हुए हैं। फ्लेमिनस और सर्विलियस और लूसिलियस नाम थोड़े से, क्योंकि वो रोमन्स ग्रीक्स के हैं तो वो थोड़े से मुश्किल हैं। फ्लेमियस, सर्विलियस और लूसिनस, ये तीनों इसके घर के मुलाजिम, मतलब ये इसके मुलाजिम हैं। लुसीलियस को एक ओल्ड अथीनियन की एक डॉटर बड़ी खूबसूरत है, उसे पसंद आ जाती है। तो लुसीलियस कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, मतलब वो उससे प्यार करता है, तो वो डिमांड करता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। तो वो उसके लिए जितना उसके पास पैसा होता है वो कहता है कि मेरे सर्वेंट को लुसीलियस को पसंद आ गई है ओल्ड अथीनियन की डॉटर, तो ये उसको पैसे देता है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। मतलब वो इतना लोगों के साथ क्या था, मुखलिस था। इसके ऊपर भी पैसे लगाता है, इसके ऊपर भी, ये भी इसको यूज करता है, ये भी यूज करता है और सारे सर्वेंट भी यूज कर रहे हैं। ये जो है एक, ये लॉयल फ्रेंड है। उसके बाद ये भी उसको अच्छा मशवरा देता है, ये उसको इस्तेमाल करता है, ये भी इधर इस्तेमाल करते हैं। फ्लेवियस जो है ये भी उसको अच्छा मशवरा देता है और बाकी जो मोस्टली जो हैं वो उसको क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं उसके पैसे को और उसको। इसके अलावा इसके अंदर 2 करैक्टर मौजूद हैं और हैं, लिख लें नाम उनका, फ्रीनिया और टिमेंड्रा। फ्रीनिया और टिमेंड्रा जो हैं ये दोनों प्रोस्टिट्यूट्स हैं एंड दे आर सेक्स वर्कर्स। इन दोनों को वो मंगवाता है क्योंकि वो इतनी नफरत करता है अपनी सोसाइटी से, अथेनियन सोसाइटी से। वो कहता है कि यहाँ पे कोई बीमारी आनी चाहिए, यहाँ पे कोई कहत आ जाए, यहाँ पे कोई फैमन आ जाए, कोई इस तरह की कोई ना कोई बीमारी आए, ये इतने जालिम लोग हैं। तो वो इनसे इतनी नफरत करता है, उनके लिए वो 2 प्रोस्टिट्यूट मंगवाता है ताकि वो इनको ज्यादा से ज्यादा अथेनियन लोगों को बुरे कामों की तरफ मतवज्जे करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारा पैसा इन लोगों के ऊपर लगाने के बाद ये इसके क्रेडिटर इतने बढ़ जाते हैं कि इसका जो स्टीवर्ड होता है, जो इसका पर्सनल सर्वेंट होता है, वो उसे कहता है, फ्लेवियस कहता है कि माय लॉर्ड, हम लोग, हमारे पास पैसे बहुत कम हो गए हैं। तो वो कहता है कि हम अपनी जमीनें बेच लेंगे। तो उसे पता चलता है कि वो जमीनें भी अपनी सारी बेच के खा चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं है। क्रेडिटर सारे इकट्ठे होकर इसके घर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसा दो जो हमें, तुमने पैसा हमसे लिया था। अब वो उनसे मोहलत मांगता है और अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के पास जाता है। वो ये एपीमेंटस के पास जाता है, वो इस वेंटिडियस के पास जाता है, वेंटिडियस के पास जाता है, फॉल्स फ्रेंड के पास। उसके अलावा दीगर दूसरे फ्रेंड्स के पास जाता है जिनकी उसने कभी खिदमत की होती है या उनको डोनेट किया या उनको पैसे दिए।
तो कुछ तो कहते हैं कि भाई उनसे बताओ कि वो घर में नहीं है, कुछ कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कहीं लगा दिए, और कुछ कहते हैं पैसे तो हैं, हमने किसी फलां बिजनेस पे लगा रखे हैं। तो इस तरह उसे वो डिफरेंट किस्म के आंसर मिलते हैं और उससे वो इंतहाई मायूस होता है। जब उससे कोई भी दोस्त उसकी हेल्प नहीं करता तो वो सबको इनवाइट करता है। टिमोन सबको इनवाइट करता है और उसमें हॉट वाटर और पत्थर रख देता है, कहता है इनको खाओ, तुम लोग इस चीज के कायल हो। और उनको बिटरली क्रिटिसाइज करता है कि यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर एनिमल्स, यू आर हिपोक्रेट पीपल्स, यू आर नॉट गुड, यू आर डिसऑनेस्ट, यू आर अनफेथफुल, यू डू नॉट हेल्प अदर, I have lost all my money on you people, but now you people are hiding yourself. You don't help me. तो इस तरह वो उनको स्टोन और वो हॉट वाटर देता है और उस तरह वो सारे जो हैं उससे क्रिटिसाइज करते हुए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल आइसोलेट होके एक जंगल में चला जाता है। वहां पे जंगल के अंदर वहां से बीट रूट्स निकाल निकाल के खाता है नीचे से, मतलब रूट्स निकाल निकाल के दरख्तों की खाता है। डेली बेस पे बीट रूट्स वगैरह खाता रहता है। और वहां पे इसका एक दोस्त है, वही जो मैंने आपको बताया था कि वो एक मिलिट्री मैन है और जिसके साथ रोमन्स जो हैं उस वक्त की जो स्टेट है वो अच्छा नहीं करती है, एथेनियन। एल्सी बाइडन जो है इसके साथ उस वक्त की स्टेट ने इसके ऊपर एक ट्रायल चलाते हैं और ट्रायल भी झूठा कि कोई किसी को कत्ल करता है वो एल्सी बाइडन के ऊपर लगा देते हैं। एल्सी बाइडन भी वहां से बाहर निकल जाता है। एल्सी बाइडन को पहले तो वो सजाए मौत देते हैं, उसके बाद उसको यानी वो उसे कहते हैं कि इस कंट्री से चला जाए। अब वो भी बाहर रह रहा है लेकिन उसे ईथन पे गुस्सा है कि ईथन ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ईथन से वो इंतकाम लेना चाहता है, उनके साथ लड़ना चाहता है। इसका मिलाप होता है टिमोन से। टिमोन्स भी ईथन से नफरत करता है। अब टिमोन्स और एल्सी बाइडन ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो इन लोगों से इंतकाम लेंगे। टिमोन वहां पे बीट रूट्स खाता है, नीचे से निकाल निकाल के दरख्तों को खाता है। और एक दिन वो जंगल के अंदर से खोद रहा होता है, कुछ डिगिंग कर रहा होता है, तो नीचे से उसे खजाना मिलता है। जैसे ही उसको खजाना मिलता है और लोगों को पता चलता है कि टिमोन फिर से बहुत अमीर हो गया, सारे लोग उसके पास फिर दौड़ के आते हैं, ये टिमोन बहुत अच्छा इंसान है, इसके पास तो बहुत पैसा है, चलो पैसा ले आए। अब उन सब के साथ लड़ता है और उनको वहां से भगा देता है। उसके बाद वो हेल्प करता है थोड़ी सी अपने फ्लेवियस, अपने सर्वेंट की, उसे भी कहता है वो इससे चला जाए। उसके बाद एल्सी बाइडन को वो बुलाता है और एल्सी बाइडन को कहता है कि वो वहां से 2 प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर आए। वो 2 प्रोस्टिट्यूट को लेके आता है ताकि वो उसी के कंट्री के अंदर वहां पे लोगों को इस बुरे कामों पर लगा दें। वो सेक्स वर्कर्स थी ताकि लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। अब वो इतना यानी मिसएंथ्रोपिक हो गया है, इल थॉट्स आ गई हैं, नेगेटिव हो गया है कि वो चीजों को लाइक नहीं कर रहा। वो 2 प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर आता है जिसमें एक फ्रीनिया है और दूसरी टिमेंड्रा है। इन दोनों को वहां पे छोड़ देते हैं कि तो आप जाओ और लोगों को मैक्सिमम सेक्सुअली इन्वॉल्व करो। इसके बाद वो बहुत सारा पैसा जो है अपना, जो खजाना उसे मिलता है, वो एल्सी बाइडन को दे देता है। एल्सी बाइडन से कहता है कि तुम जंग लड़ोगे और तुम मेरा भी बदला लोगे इन इथेनियन लोगों से, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी बहुत जुल्म किया है, मुझे भी हेल्प आउट नहीं किया और तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया, तो तुम जंग लड़ो। अब एल्सी बाइडन उनके साथ जंग लड़ना चाहता है और काफी देर के बाद होता यूं है कि अब वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया है टिमोन्स, और टिमोन्स की वहां पे डेथ हो जाती है और वो अपना एपिटैफ खुद लिखता है। एपिटैफ का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या है? मैंने पहले भी बताया हुआ है। यस सर, आपने बताया था कि जो ऐसे राइटर ना अपनी डेथ से पहले या कोई भी इंसान लिख देते हैं कि वो कब्र के ऊपर वो जो वेरी गुड। बोर्ड उसके ऊपर वो अपना जी। एपिटैफ खुद लिखता है और उस एपिटैफ के ऊपर देखें, जब आप किसी के साथ नेगेटिव होती हैं या नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, उसका इम्पैक्ट कहां तक जाता है। जब उसकी डेथ होती है, लोगों से मिलना छोड़ देता है एल्सी बाइडन, जो कि खुद नेगेटिव हो चुका है, उसके साथ ही उसकी थॉट अब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में मिलाप नहीं होता। दुनिया की रिजेंटमेंट, दुनिया की डिप्रेशन, दुनिया के हालात आपको नेगेटिव ना बना दें।
इसके ऊपर आपने वर्क करना है कि लोग जो भी करते रहें, आप एक ऐसे कैटलिस्ट बने कि पीपल वट एवर पीपल आर डूइंग यू शुड नॉट एम्ब्रेस ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी को कोई नेगेटिव बना दे। सबसे बड़ा जुल्म आप अपने ऊपर करते हैं जब आप इन चीजों को नेगेटिव को देख के नेगेटिव हो गए। तो एपिटैफ वो लिख के और उसके ऊपर भी ये लिख के जाता है कि मैं दुनिया में ऐसा इंसान हूं जिससे कोई प्यार नहीं करता। वो कहता है मेरी कब्र के ऊपर ये लगा दें, और उसकी कब्र पे लगाया जाता है उसका एपिटैफ, और इसके ऊपर बहुत अफसुर्दा होते हैं उसके दोस्त, स्पेशली एल्सी बाइडन। दूसरे फ्रेंड सारे डिसलॉयल नहीं थे, यानी कुछ उसके साथ अनफेथफुल थे, लेकिन कुछ उसे अच्छे मशवरे देने वाले भी थे। हमारे साथ जब भी बुरा होता है तो हम हर किसी को कहते हैं ये भी चोर है, ये भी चोर है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इससे ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। क्योंकि हमारे साथ एक दफा नेगेटिविटी से हम गुजरे हैं, तो हम उसकी सजा फिर लोगों को देते हैं। खुद को तो हम दे ही रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में आता है हम उसको ही सजा देना शुरू हो जाते हैं। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे चिमोन्स भी वही करके गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उसे अच्छा मशवरा भी दे रहे थे कि भाई इस तरह स्पेंड थ्रिफ्ट ना हो। और आपने देखा होगा शेक्सपियर के प्ले के अंदर ट्रेजेडी का एंड हमेशा मौत पे होता है, और उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्ला होता है। और इसका ट्रेजिक फ्ला क्या है, कोई बताएगा इसका ट्रेजिक? सर ये सब अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर रहा होता है ना कि एक जब तो इस पैसे बुरा करेगा एक तो तो वो बहुत हेल्प ज्यादा करेंगे। ट्रस्ट करना, और बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट होना, और बहुत एक्सेसिव आप पैसा खर्च कर रहे हो। पैसा आप मतलब जितना आपको खर्च करना चाहिए आप उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो, और यूजलेस चीजों पे खर्च कर रहे हो, ऐसे ही लोगों को डोनेट कर रहे हो। इंसान अगर खुद कुछ नहीं है तो वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट वर्क ऑन हिमसेल्फ। इफ yourself mean your heart, body, mind, soul, and these are in balanced, you are educated, you are well versed, you are having well equipped with wealth, and you have potential energy, and now you can go to the field to help other. अगर आपके पास कुछ नहीं है और मैं किसी की हेल्प, मुझे तैरना नहीं आता और मैं किसी के लिए छलांग लगा दूं, मैं तो खुद भी मरूंगा और उससे भी मारूंगा। So the thing is that you should well equipped, you have your tools, you have your potential energy, heart, body, mind, and soul in balanced form, then you should go outside to help other. किसी की हेल्प करने के लिए मेरे पास वेल इक्विप्ड होना जरूरी है। अगर मैं खुद नहीं हूं तो मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता। होप यू गॉट द पॉइंट, और ये आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। इसमें हमने कैरेक्टर देखा, समरी देखी, और हमने ये काइंड ऑफ ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी सेटिंग इसकी ईथन की है। इथेनियन लोग आपको दिखाए गए हैं, कैरेक्टर्स भी वही हैं, और पॉस्टमस। सर ये जो प्ले का जो था नाम उसका कैसे शेक्सपियर और थॉमस मिडल्टन का नाम लिखा, तो ये दो लोगों ने प्ले लिखा है? यस, इन दोनों ने मिलके, इनको कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क। बात बात अगर मैं कुछ आइडिया मेरे पास है, कुछ आपके पास है, हम दोनों मिलके कोई काम लिख देते हैं, उसे कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क। शेक्सपियर ने कोलैबोरेट किया है जॉनसन के साथ, बेन जॉनसन के साथ कोलैबोरेट किया है, उस वक्त का कंटेम्परेरी था। इसके अलावा और भी थे जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर लेते थे। तो अगर आप किसी के साथ मिलके लिख रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क। बात कुछ राइटर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे, जैसे थॉमस हार्डी है, वो दो एजेस में आएंगे। मतलब वो विक्टोरियन एज में भी आ रहा होगा, वो किसी और मॉडर्न एज में भी आ रहा होगा। तो इस तरह भी आपको राइटर्स मिलेंगे, कुछ उनको कहते हैं ट्रांजिशनल राइटर्स। तो दीज आर टर्म्स इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपने अभी सीखनी है। हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ा, अभी हमने क्रिटिसिज्म जॉनसन एज अ क्रिटिक पढ़ना है, हमने अलेक्जेंडर पॉप एज अ क्रिटिक पढ़ना है इंशाल्लाह, हमने उसके अलावा ड्राइडन एज अ क्रिटिक पढ़ेंगे, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। मैं इसे बंद करने के बाद दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूं।